गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धास्सु ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं तन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूतसनातनि गुणाश्रय गुणमय नारायणि नमस्तुते। शरणागत दीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वशार्ति हरिदेवी नारायणि नमस्तुते। जय नारायणि नमस्तुते। जय नारायणि नमस्तुते। जय नारायणि नमस्तुते। गणानां गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एकदंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय ध्रुपद गावे अति विचित्र गणानाथ आज मृदंग बजावे धट धराध धर धर कृधान दिन 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 नागे 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 धन धन तिन तिन ताके नाना तद्रि गण धृग धृग दिनागे दिनागे ता कृतक धरान तरान धा कृतक धरान तरान धा कृतक धरान तरान धा। 21st March 2026. An excellent evening, my dear music associated friends, brothers and sisters, and music lovers too. In the course of my tabla riyaj on that evening, I would like to and love to share my riyaj through Meta Facebook Live. So dear friends, first of all, I would respectfully dedicate my tabla riyaz to the lotus feet of my spiritual Guruji, Lord, and leaving Guru, past Guru, who those were my mentor, master, friend, philosopher, guide, right from the childhood. I offer my floral tributes to the lotus feet, to my parents and other great maestro musicians in the past, who those were well connected to our family, and at present all my friend musicians, brother, sister musicians, and other friends too. So dear friends, I just followed them, and still now I follow the musicians. I didn't learn anything about tabla, but I try my best to follow them. Thank you very much, dear friends. Be connected
be associated. You all are my friends. I love you very much. My gratitude to you all in connection with the music. I always try to quote my own version about music. Music is the best therapy for health and universal humanity. Where words fail, music speaks spiritually. This Qaida of Banaras Gharana, there are Gharanas of Tabla, but old Gharana is Delhi Gharana and Punjab Gharana too. Other Gharanas, very important Gharanas, such as Farrukhabad Gharana, Ajrara Gharana, Lucknow Gharana, Banaras Gharana, and of course Kolkata Gharana too. Initially, the Delhi Gharana Baj, many Drain tabla player exponent in the past, legend tabla maestros, Vijay tabla player who proved and established tabla, and who those were residing and bifurcated from Delhi, Punjab. One tabla player, he was residing in Ajrara. Then that great maestro tabla player, he established Ajrara Gharana. Similarly, the next one who was residing in Farrukhabad, then it became Farrukhabad Gharana. And the same process resided in Lucknow, Banaras, that became Lucknow Gharana, Banaras Gharana. And many tabla player, legend tabla player, nowadays you all find from Kolkata,
And this is the gift of Ustad Masjid Khan. Ustad Masjid Khan, he was residing in Kolkata, and that was the gift of Pandit Anathnath Bose. Pandit Anathnath Bose was such a classical, versatile musician, singer, tabla player too. I heard that Pandit Anathnath Bose, he invited Ustad Firoz Khan of great tabla player from Punjab Gharana. Similarly, Pandit Gyan Prakash Ghosh, he established, he proved, and I say he was the manufacturer of tabla players. You can say he was industry of tabla. And similarly, the great tabla player, maestro tabla player Pandit Shankar Ghosh ji, he initially took tabla talim from Pandit Sudarshan Adhikari, then Punjab Gharana's great tabla maestro Ustad Firoz Khan, and then he came in contact to Pandit Gyan Prakash Ghosh, and finally he took talim from Pandit Gyan Prakash Ghosh. Pandit Gyan Prakash Ghosh, he produced many great tabla players of West Bengal, such as Pandit Shankar Ghosh, then Pandit Kanai Datta, Pandit Shamul Bose, Pandit Manik Mukherjee, and other great tabla players. Nowadays, Pandit Sanjay Mukherjee, Pandit Anindya Chatterjee, and many other tabla players nowadays. And the great tabla player of West Bengal, Pandit Shapan Chaudhary. Pandit Shapan Chaudhary's guru, he took talim from Lucknow Gharana's Ustad. His name was Pandit Santosh Krishna Biswas. Many other tabla players. Nowadays I find my friends, my musician, tabla player friends, brother, those are doing well. Pandit Shankar Ghosh, his son, very talented and genius son, Bikram Ghosh. Now they all are Pandit, as because they have proved themselves and received recognition from All India Radio. Who those are top graded tabla player or top graded musician, they are known as Pandit. And similarly, the Muslim candidate, if they got recognition, if they receive recognition from All India Radio top grade, they become Ustad. So similarly, I say in the past and in the present, many tabla players are doing well, but it is unforgettable moment which I heard from great tabla player of Banaras Gharana, Pandit Anokhelal Mishra, Pandit Shamta Prasad Elias Uday Maharaj, Pandit Kishan Maharaj, Pandit Lakshu Maharaj, Pandit Mahadev Mishra. Pandit Mahadev Mishra, he was a great singer, thumri singer and tabla player too. And many other tabla players, Pandit Sharda Sahai, and ancestral, their tradition, Pandit Shamta Prasad ji's father, Pandit Bacha Maharaj, Pandit, his guru, Pandit Bhikkhu Maharaj, and similarly Pandit Kishan Maharaj ji's gharanas, that Bhairav Sahai, Pandit Baldev Sahai, they all were great tabla players of Banaras Gharana. And Ustad Allah Rakha from Punjab Gharana, his son, the great genius son, his name will be, वो एक शेर मैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के
बारे में मैं उन्हें स्मरण करते हुए, उस्ताद जाकिर हुसैन को स्मरण करते हुए मैं एक शेर आप सबों की खिदमत में रूबरू करवाना पसंद करूंगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक हमारे बीच, हमारे दुनिया में उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला, जाकिर हुसैन साहब, जाकिर हुसैन जी अमर रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, उस्ताद जाकिर हुसैन अमर रहेगा। उनके तबले को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी तरह मेनी अदर तबला प्लेयर्स आज भी पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित गुदई महाराज जी के तबले के बोल हमारे कर्णों में इतने कर्णप्रिय और गूंजते रहते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी तबला प्रेमी लोग हैं, सबों के कानों में जिन्होंने तबला सुना है पंडित शांता प्रसाद गुदई महाराज जी को, उनके परफॉर्मेंस को देखा है, उनके सोलो स्वतंत्र तबला वादन को सुना है, या डांस के साथ, नृत्य के साथ उनका तबला सुना, या इंस्ट्रूमेंट के साथ सुना, या गाने में सुना, वो आज भी उनके तबले के गूंज सबों के कानों में गूंजते रहते हैं। और पंडित किशन महाराज जी का कहना क्या है, वो तो हमारे देश के, दुनिया के एक ऐसे महान पंडित तबला वादक थे, लयदार तबला वादक थे। इसी तरह हमारे समझिए कि अजरारा घराना के भी उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब, हमारे फरुखाबाद के उस्ताद मसीद खां साहब, उस्ताद अहमद जान थिरकवा साहब, हमारे दिल्ली वो तो सब घराने के तबला के नवाज थे उस्ताद अहमद जान थिरकवा साहब। उनके उंगलियों में वो ऐसी थिरकन थी, इसी वजह से उन्हें अहमद जान थिरकवा के नाम से वो जाने जाते थे। इस तरह से महान तबला वादक थे। मैंने सुना बचपन से, समझिए कि दिल्ली घराना के महान तबला वादक उस्ताद लतीफ अहमद खां को सुना, उस्ताद सफात अहमद खां को सुना, हमारे लखनऊ घराना के उस्ताद अफाक हुसैन साहब को सुना, मेहदी हसन साहब को सुना तबला वादक। इस तरह से महान तबला वादकों को मैं स्मरण करते रहता हूँ, याद करते रहता हूँ। और मैं जब बिहार पटना में था तो दुर्गा पूजा से दिवाली तक काफी शास्त्रीय संगीत के हर चौराहे पर, हर एक 1.5 किलोमीटर के बस अंतराल में, 2-2 किलोमीटर के अंतराल में वो सारा रात संगीत समारोह हुआ करता था। और 3 प्रहर में संगीत हुआ करता था पटना में। और मैं भी जब बड़ा हो गया, जब कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होने के बाद, मैं स्कूल से ही वो शास्त्रीय संगीतकारों के पीछे घूमता रहा। और समझिए कि सारे ऑर्गेनाइजरों के साथ मैं जुड़ा रहता था। और मैं जब कॉलेज से पढ़ाई खत्म करके जब नौकरी में आया, तब मैंने भी पटना में शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। मैंने 1982 साल में 5 फरवरी बसंत पंचमी का दिन था, वो दिन कभी भुला नहीं पाएंगे, जहाँ जीवन मेरे साथ वो रहेगा बरकरार। वो मैंने पंडित रविशंकर जी का सितार और उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब को, मैंने हमारे बड़े एक मित्र भाई साहब थे विपिन बाबू के साथ मिलकर वो कार्यक्रम मैंने किया। फिर मैंने 1983 में हमारे मित्र, जो हमारे सरदार सुरिंदरजीत सिंह आहलवालिया जी, जो हमारे काफी बड़े भाई मित्र थे, हम वो और हमारे एक और दादा थे साक्षर चट्टोपाध्याय जी, और हमारे उपेंद्र विद्यार्थी जी। हालांकि ये दोनों हमारे आहलवालिया जी और विद्यार्थी जी और चट्टोपाध्याय जी, ये तीनों हमारे काफी प्रिय थे। तो हम तीनों चारों मिलकर ये शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था 1983 में। 5 फरवरी को पटना के बृहद गांधी मैदान संलग्न जो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है, उस ऑडिटोरियम में मैंने उस्ताद अली अकबर खां साहब, पंडित शंकर घोष जी का बहुत अच्छा वो संपूर्ण कार्यक्रम रहा। 3.5 घंटा वो कार्यक्रम, और जिसमें समझिए कि 2.5 घंटा से 2.25 घंटा पुड़िया धनाश्री राग उस्ताद अली अकबर खां साहब ने बजाया, और पंडित शंकर घोष जी का क्या तबला वादन था। इस तरह से सारे हम अगर शास्त्रीय संगीत के
फनकारों को याद करेंगे और उनके सारे परफॉर्मेंसेस को याद करेंगे तो वो दिन, ये कहते कहते रात हो जाएगी और मेरा तबला रियाज संपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मित्र, पटना के चौराहे पर प्रोग्राम हुआ करता था। समझिए कि एक चौराहे पर पंडित गोपी कृष्ण जी का नृत्य हो रहा है तो अगले चौराहे पर पंडित बिरजू महाराज जी, सितारा देवी जी डांस कर रही है, उर्मिला नागर डांस कर रही है जयपुर राजस्थान की, रोशन कुमारी डांस कर रही है। महान एक चौराहे पर पंडित निखिल बनर्जी का सितार बज रहा है तो अगले चौराहे पर पंडित रविशंकर जी का सितार बज रहा है, अगले चौराहे पर उस्ताद विलायत खां साहब का बज रहा है, उस्ताद अमजद अली खां साहब आया करते थे, इस तरह से अली अकबर खां साहब आया करते थे और बनारस के महान तबला वादक पंडित कंठे महाराज जी आते थे, वो तबला बजाते थे। क्या उनका तबला था, और समझिए कि वज्रासन में बैठकर उनका जो बनारसी पोज था, पंडित कंठे महाराज जी, पंडित किशन महाराज जी, इस तरह से महान तबला वादकों को सुना। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहे। इस तरह से काफी कहानियां स्मरण मेरे जहनों में समाये हुए हैं और समझिए कि अगर ये कहते बयां करते जाऊं तो ये रात बीत जाएगी। काफी बहुत आनंदमय जीवन था। अब वो तो बिहार में पटना में समाप्त हो गया शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। अब छोटा मोटा कार्यक्रम हालों में होते रहता है ऑडिटोरियम में, लेकिन महान संगीतज्ञों को अगर याद किया जाए, हमारे घर पे भी लोग आया करते थे। धारवाड़ के पंडित बासवराज राजगुरु जी, देवधर जी, श्रीकांत बाखरे जी महाराष्ट्र के, और समझिए कि हमारे पिताजी के साथ काफी मित्रता थी। पंडित उस्ताद पटियाला घराने के डोएन उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, और इस तरह से काफी याद आते रहते हैं। हमारे उनके शिष्य थे पंडित प्रसून बंदोपाध्याय, विदुषी मीरा बनर्जी, इन लोगों का गाना सुना। निर्मला अरुण जी, गोविंदा जी के माता जी, उनके साथ पंडित शंकर घोष जी का तबला, और एक दो महफिल में, रूम सिटिंग महफिल में, उस वक्त मैं छात्र जीवन में ही उनके साथ तबला संगत करने का मौका, अहोभाग्य प्राप्त हुआ। अली अकबर खां साहब भी हमसे बजवाए, लेकिन वो छोटा मोटा कार्यक्रम था। तो इस तरह से, लेकिन काफी उन सबों के संस्पर्श में, उन सबों के साथ आने का मौका मिला। बस इसी तरह से आज थोड़ा बहुत आप सबों को मैं सिखा तो कुछ नहीं, चूंकि नौकरी में था। हमारी नौकरी ऐसी थी कि बहुत इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ता था। मैं भारत सरकार के दो ऑर्गेनाइजेशन को मैंने सर्व किया। तो इस तरह से समझिए 42 साल मैं नौकरी किया भारत सरकार का, और उसके बाद अभी रिटायर्ड लाइफ, अभी 70 साल उम्र तो बस एक बहाना है। मिजाज बनाए रखते हैं भैया, बनारस जाते थे बचपन से बस। और पंडित शांता प्रसाद जी कहते थे, बनारस अला गौतम राबरी मलाई नाही खैबा। कहाँ जाते हो? हम कहे कि बस तोहे से मिल के तहर आशीर्वाद लेके अब जाते हो। तनी पंडित किशन महाराज जी, उनसे थोड़ा मिलब। इसी तरह से सबों के घर में हम जाया करते थे, मिलते थे। काफी घरेलू संबंध था। जब पटना आते थे तो हमारे घर उन सबों को आना ही है एकदम। ये मेरा बिल्कुल, ये इतना दबावपूर्ण मेरा विनम्र अनुरोध रहता था कि हमारे घर पर आकर आपका चरण गिरे। इस तरह से बस याद करते रहता हूँ। और एक शेर और पढ़ना पसंद करूंगा। चरागों को अपने आंखों में महफूज रखना, चरागों को अपने आंखों में महफूज रखना, और इस संगीत को अपने दिलों में समाये रखना। तो इसी तरह से कह रहे थे बनारस का जो देखिए बोल, तो ओरिजिनल बोल है, धाते टे धादा टे धागे थू ना के ना, ताते टे धादा टे धागे दी नागे ना। और इसी तरह से हमारे फरुखाबाद घराने में इसे रेला के रूप में किया गया। पंडित शंकर घोष जी ने इतना मेलोडीपूर्ण इसके साथ ऐड कर दिया। धाते टे धादा टे धागे तू ना घेना ना ना नाते टे धाते टे धागे तू ना घेना, ताते टे धादा टे धागे ती ना घेना ना ना नाते टे धाते टे धागे ती ना घेना। तो ये घेना ना ना नाते टे धेटे लग जाने से बड़ा मेलोडी आ गया। तो ओरिजिनल बोल था, और
ये चीज था, पंडित शांता प्रसाद जी कहिए, किशन महाराज जी कहिए, पंडित शंकर घोष जी कहिए, पंडित श्यामल बोस जी कहिए। पंडित श्यामल बोस के हाथ में इतना मिठास था, वो एक धा लगाते थे, लगता था कि गुलाब का फूल खिल रहा है। पंडित शांता प्रसाद जी का तो कहना ही नहीं, हर बोल को वो गुलाब के फूल के तरह वो निखारते रहते थे, उनका निकासी इतना सुंदर था। तो इस तरह से कहते थे, जो भी बजाओ कम लय में बजाओ, लेकिन हाँ बोल बानी पूरा साफ निखिल। जो अभी देखिए पंडित सपन चौधरी जी इतना मेथोडिकल तबला बजाया करते थे, बजाते हैं। अभी अभी कलकत्ता में थे, तो समझिए कि नवंबर के बीच से मिडिल ऑफ नवंबर से लेकर एकदम बिल्कुल फरवरी तक उनका 4-5 कार्यक्रम मैंने सुना। इस तरह से काफी बोलों की सफाई होनी चाहिए। उल्टा तेटे भी लगता है। इसी तरह पंडित शंकर घोष जी ने किया, धाते टे धा धाते टे धागे तुम ना घेना ना 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 ते देख धाते टे धागे तुम ना घेना, धाते टे धा धाते टे धागे दिन ना घेना ना 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 ते देख धागे दिन ना घेना।
अब उल्टा तेटा देखिए। इसी तरह बस अपने को आनंद अनुभव करते रहना है। अब इस उम्र में कहीं जाकर मंच पर, ये मंदिर है, यही मेरा मंच है, रियाज करते हुए जो आनंद भीतर से बिल्कुल जागृत होते रहती है। और मैं तो ईश्वर को बस तबला सुनाते रहता हूँ। और जितने महान तबला वादक लोग थे हमारे भारतवर्ष के, उन सबों को स्मरण करते हुए, उनके चरणों को स्पर्श करते हुए, बस उन्हीं सारे उनके आत्माओं को, चूंकि इस गौतम कोमल गांधार का तबला सुनकर उन्हें अगर कुछ मिले शांति, तो बस यही करना पसंद करता हूँ। और इसी तरह से हमारे साथ जितने भी मित्र लोग जुड़े रहते हैं, तो मेरे साथ जितने भी मित्र लोग हैं, भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, मेरे साथ बस इस लाइव में, मेरा फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े रहते हैं, उन्हें मैं तहे दिल से शुक्रिया, बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन बहुत छोटा शब्द हुआ, बस आप सबों को दिलों से बहुत, आप सबों को मैं प्यार करता हूँ। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह मुझे भी आनंद आते रहे। और बस और क्या कहूँ। इसी तरह देखिए, बहुत अच्छा ये बनारस का बाँट है। बनारस में ये धिक धिना त्रिकट धिना धागे न धिक तिनाड़ा, तिक तिना त्रिकट तिना धागे न धिक तिनाड़ा, धिक तिना त्रिकट तिना धागे न धिक तिनाड़ा, तिक तिना त्रिकट तिना धिक तिनाड़ा। और इसी तरह हमारे पंडित शंकर घोष जी को सुना, ज्ञान बाबू भी
बजाते थे। और इस तरह से समझिए कि ये लोग इसको यहाँ का फर्रुखाबाद का जो, या लखनऊ घराने का कहिए, दिल्ली का कहिए, तो ये सूर और कानी का बहुत अच्छा ये है, रेला कहा जाता है। नाधी गदी नाना घेना घेना धाती धाधा तुन्ना, नाती कति नाना घेना घेना धाती धाधा धिन्ना। तो लेकिन अभी मैं बहुत सारे जो अभी देश के महान तबला वादक लोग हैं, वो लोग धीक धिना तिकड़ धिना बजाते के साथ साथ वो फर्रुखाबाद के नाधी गदी नाना घेना धाती धाधा तुन्ना या घेना धाती धाधा तुन्ना नादी गदी नाना घेना, ये धीक धिना तिकड़ धिना के साथ ये लगा देते हैं। तो जिस तरह से घेना धाती धाधा तुन्ना या धीक धिना तिकड़ धिना ना घेना, तो इसमें होता है क्या, स्पीड आ जाता है। और धीना तिरक धीना धागिना तीनाड़ा तीना तिरक धीना धागिना, ये स्पीड में बहुत कम लोग बजाते हैं। हमने देखा ये बजाते थे पंडित शांता प्रसाद जी के, उनके हाथ से तो हर तबले का बोल बिल्कुल फूल खिल उठता था। वो चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे आप समझिए कि सूरजमुखी हो, रजनीगंधा हो, चमेली का फूल हो, कोई भी फूल, वो इतने महान तबला वादक थे और इतना रियाज उनका था। वो तो समझिए कि वो उस वक्त जमाने में उनके ही मुंह से सुना 15 घंटा 14 घंटा रियाज करते थे। और उस वक्त हमारे उस्ताद लोग भी कहते थे कि चिल्ला हुआ करता था, जैसे 9 दिन का बिल्कुल 9 घंटे चिल्ला, 10 घंटे चिल्ला, 10 दिन 14 दिन इस तरह से चिल्ला किया करते थे। लेकिन वही है, साधना है, संगीत बहुत एक जन्म में संभव नहीं है। म्यूजिक कांट बी कंप्लीटेड इन वन लाइफ, ये बहुत मुश्किल चीज है। थोड़ा लय अगर बढ़ा के बजाया जाए, यही से आप रेला ये जो है ना, इसका लग्घी का रूप यहाँ से ले लेता है। ये ना भी गद्दी ना गेना गेना दादी यहाँ से ले लेता है ये। इस तरह से काफी लग्घी बसता है इस तरह से। उंगलियों की तैयारी करना, ये देखिए 10 उंगलियों की बहुत अच्छा एक्सरसाइज हुआ करता है, हो जाता है। तो वेरी गुड एक्सरसाइज ऑफ 10 फिंगर्स। तो इस तरह से तबला जो है ना, और समझिए कि हाथों का एक्सरसाइज तो है ही है, साथ साथ दिमाग का भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हो जाता है, क्योंकि ये हिसाब है। और मैं तो उतना तबला माने बस आनंद पाने के लिए मैं खुद आनंद पाते रहता हूँ और ईश्वर को मैं आनंद देने की कोशिश करते रहता हूँ अपने रियाज के माध्यम से।
और समझिए कि गलती सही, अगर भैया गलती हो तो वो हमारी निजी गलती रहती है, और चूंकि कभी भी गुरुओं का सिखाया हुआ गलत चीज नहीं होता है। ये अपने आप में अब जो भी बज रहा है मैं ईश्वर को सुना रहा हूं, और अपने बस जितने हमारे साथ जुड़े रहते हैं उन्हें अगर पसंद आता है, चूंकि पसंद आता है इसलिए मेरे साथ जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से हमारे भाई लोग अभी दिख रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा दूर में हूँ, यहाँ से पढ़ने में दिक्कत हो रही है। मैं देख रहा हूँ मेरा छोटा भाई पिनाकी है, वो है, सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। पुनः आप सबों को धन्यवाद देना पसंद करते रहता हूँ। ये भी, ये हाथ साफ के लिए बहुत अच्छा चीज है। पंडित शंकर घोष जी खूब अपने स्टूडेंट्स को दिया करते थे, छात्र लोगों को। धाती का धेटता, धाती का धेटता, धाती के ना, ताती का धेटता, धाती का धेटता, धाती के ना। ये थोड़ा सा बड़ा मुंह वाला तबला है, पकवाजी वाला तबला।
देखिए, पटना के महान तबला वादक पंडित ज्योति प्रकाश चक्रवर्ती दादा हमसे काफी बुजुर्ग है, और मैं बचपन से उन्हें दादा दादा कहते आया हूँ। और समझिए, मेरी अगर 70 साल उम्र है तो ज्योति दादा का उम्र अब समझिए कि हमसे 7-8 साल बड़े हैं, और बहुत महान तबला वादक है पंडित ज्योति प्रकाश चक्रवर्ती जी। उन्हें उनका जो निक नेम है पन्ना दा, वो बिहार के मशहूर तबला वादक है। तो दादा को मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनसे क्षमा मांगता हूँ। दादा, आप जानते हैं मैं तो उतना कुछ सीखा नहीं, बस आप लोगों को फॉलो करते रहा बचपन से, और इसी तरह अपना आनंद पाने के लिए मैं अपना ईश्वर को सुनाते रहता हूँ। और भूल चूक जो हो दादा माफ कीजिएगा। मैं बस इसी तरह से अपना तबले का बस ये करते रहता हूँ कि उंगलियों को ठीक रखे भाई, एक्सरसाइज होते रहे, और ईश्वर की आराधना में जुटते रहता हूँ, महान तबला वादकों को स्मरण करते रहता हूँ। और अभी भी जितने प्रेजेंट लोग हैं, कलकत्ता में ये है कि दैट इज कॉल्ड सिटी ऑफ जॉय, तो कलकत्ता सिटी ऑफ जॉय है। रोज प्रोग्राम रहता, आज भी वो था प्रोग्राम, लेकिन आज गया नहीं भाई। बहुत सुना, और कितने लोगों को सुनते रहा, अब कितना सुनूंगा, इसलिए बस ईश्वर की आराधना में लगे रहते हैं। ज्योतिदा, भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा बस। ये धारे तादे देटे धारे धारे धाते नाती नाड़े, तारे तादे देटे धारे धारे धाते नाती नाड़, ये गुदई महाराज जी के हाथ से लगता था एकदम बिल्कुल। वो कहते थे, देखा भैया दिल्ली का कुतुब मीनार देखा, ये लगता था धार तादे देटे धार। उनके हाथ से तो जो भी बोल बजे तो लगता था कि गुलाब का फूल खिल रहा है एकदम। हर फूल इतना इतना अच्छा निकासी था, अभी भी कानों में गूंजते रहता है पंडित गुदई महाराज और शांता प्रसाद जी का तबला। और पंडित अनोखे लाल जी का, मैं बहुत बच्चा था, पंडित अनोखे लाल जी का धिरकिट कहिए, नादिंदना कहिए, लगता है सांप की तरह धिरकिट चलता था। और उनका लड़का भी पंडित रामजी मिश्रा भी बहुत सुंदर तबला बजाते थे। आहा, और गुदई महाराज जी का ये तो धार तादे देटे धार, क्या कहना था। किशन महाराज जी इसको बजाते थे, लेकिन गुदई से जाकर तो कहना क्या था। ये हमारे पन्ना दादा का स्टाइल था, ज्योति दादा का। जब भी तिरकिट बजता था उनके हाथ से, कहरवा का लग्गी उग्गी हो, आहा।
तरह से बहुत सुंदर। और समझिए कि पंडित शांता प्रसाद जी के हाथ से ये धागे धीना गिना धागे थुना गिना क्या निकलता था। आहा, थोड़ा लय बढ़ाकर अगर किया जाए। फिर ये छक्की लगाकर ये तिरकिट जो है ना, ये अगर ठीक निकल जाए तो देखिए बस अल्लाह ताला का आशीर्वाद मेहरबान है। अल्लाह ताला और गुरु जी का भी बड़े, हम तो सबों को गुरु मानते हैं। हमारे जितने अभी ज्योति दादा है, ज्योति प्रकाश चक्रवर्ती जी, महान तबला वादक, वो तो पहले कलकत्ता में थे लेकिन पटना में जाके बस गए। और सच में उनके हाथ में क्या अभी भी जादू है। ज्योति दादा हमारे बिहार के महान तबला वादक है। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ तहे दिल से। और उनके हाथ से जो भी निकलता है, उनका संगत भी बहुत सुंदर है। वो तो आज अगर कलकत्ता में रहते तो वो आज एक नंबर तबला वादक कहलाते। क्या बात है ज्योति दा, आप मुझे प्यार करते हैं, आप हमारा तबला सुन रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन बस मैं तो ईश्वर को सुना रहा हूँ। और जो भी गलती सलती बजे क्षमा, पुनः कहता हूँ कि क्षमा कीजिएगा दादा।
एक और बहुत सुंदर बोल था, ये भी पंडित शांता प्रसाद गुदई महाराज जी बजाया करते थे। धाती के नगना, धाती के नगना, धाती के ना, धाती के नगना, धाती के नगना, धाती के ना। बहुत रात हो गई, 9 बज गया, 9:10। आप सबों को मेरा गौतम कोमल गांधार की ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं, बधाई। आज रामनवमी का ये तीसरा दिन है, माता जी को नमन करते हुए। और सबसे बड़ी चीज की आज बहुत पवित्र पर्व भी है, और ईद उल फितर का जो ईद का आप सबों को ढेर सारे शुभकामनाएं बस देकर समाप्त करना पसंद करूंगा। एक दो शेर आप सबों के खिदमत में पेश करना पसंद करता हूं। बस उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और एक शेर बहुत उम्दा शेर है, अगर फुर्सत मिले तो वक्त का इनाम बन जाओ, अगर फुर्सत मिले तो वक्त का इनाम बन जाओ, हम बन जाए लक्ष्मण और तुम राम बन जाओ, मिटाकर जुल्म का रावण और बचाकर प्यार की सीता, जमाने के लिए यकजहती का पैगाम बन जाओ। यक देखिए, ये जो आज का जो पवित्र त्योहार है
ईद। तो ये ईद का क्या वार्ता है, क्या मैसेज है? ये है बी यूनाइटेड। आप सब एक साथ मिलकर रहिए। आपको कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा आप अगर यूनाइटेड हैं। तो ईद यही कहता है, बड़ों को आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, प्यार बांटिए। और इस तरह से छोटों के साथ, बच्चों के साथ, और जितने भी आजकल टैलेंटेड बड़े बड़े अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस लोग हैं, हमारे ज्योति दादा के दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में बहुत सुंदर गाना वो पेश करते रहते हैं और ज्योति दादा मुझे भेजते रहते हैं। पंडित ज्योति प्रकाश चक्रवर्ती जी महान तबला वादक बिहार के, वो उनके गुरु जी थे हमारे बनारस घराना के पंडित कृष्ण कुमार गांगुली जी। हाँ, पंडित हीरू गांगुली, पंडित के गांगुली, कृष्ण कुमार गांगुली जी, जिन्हें नाटू बाबू के नाम से वो जाने जाते थे, बंगाल के महान तबला वादक लोग थे। तो इस तरह से बस इसी तरह से मैं आप सबों की खिदमत में आते रहता हूँ। बस गुरु मंत्र उच्चारण कर और पुनः शांति मंत्र, बस आप सबों के खिदमत में मंत्र पाठ कर आज पूर्ण विराम पसंद करूंगा। এখানেই শেষ করছি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আনন্দময় মুহূর্ত এই শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শুনবেন বা যে কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীত, যে কোনো সঙ্গীত শুনবেন। সঙ্গীত আপনাকে একবারে মন মেজাজ আপনাকে ভালো রাখবে। আর এইভাবেই সুস্থতা বজায় রাখবেন। আনন্দময়, সুখময়, শান্তিময় জীবন আপনারা অতিবাহিত করবেন ঈশ্বরের পাদপদ্মে আমি প্রার্থনা জানাই। গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর, গুরুর সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং নন্দাতীतं গগন সদৃশং तत्मस्वदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री श्री गुरु महाराज जी की जय। जय परम गुरु महाराज जी की जय। जय ठाकुर माँ स्वामी जी महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय माँ गंगा माई की जय। जय भागवत भक्त भगवान की जय। जय आज का आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
prayers go up and blessings come down.